Now we have already approved the census. They are now in the process of identifying villages where Assamese Muslims are living, and also they are earmarking the wards and other places where Assamese Muslims are living in the town area. अगर बीजेपी का इंटेंशन डिवाइड एंड रूल है तो ये गलत है, इसका हम अपोज करते हैं. We are mostly affected. Only because of the immigrant Muslims, they have completely destroyed our identity. बीजेपी गवर्नमेंट जो हिमंत बिस्वा शर्मा असम का जो सीएम है, इन लोग के पास असम का जनता के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो अभी उसके लिए दे आर डूइंग डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला. अगर ये हमें बहुत दिन रहा है ना, अगर किसी ने अगर बोल दिया है बांग्लादेश तुम हार जाओ तो वो क्या लगेगा? बेया लगेगा, खराब लगता है. तो क्या बोलेगा उनको, तुम क्या जवाब देगा? हमारी बांग्लादेश नहीं है, हमारी असम है. The new Indian team visited remote villages situated in Kamrup Rural District to find out how different the identity of the indigenous Muslims as compared to Muslims coming from the East Bengal origin. Assam government is doing a survey for the indigenous Muslim communities in Assam. Since history, the indigenous communities, Muslim communities of Assam had their own culture, but it was lost due to the irrelevance among the community in politically as well as culturally. We are now in a village in Kamrup Rural District named Photuri, where we are speaking with the indigenous Muslim communities. And if you can see, it's the Goria dominated village. Goria is one of those indigenous communities among the 5 communities. And since Assam is known for producing quality mekhla chadors and handloom garments, you can see the ladies of the village doing the weaving of a sador that will be prepared. So this is famous in Assam, and this is done by the Assamese communities, both Hindus and Muslims. And this is the Korea community. They are part of the indigenous communities that they are doing this. So this also shows how different the culture is. If you can see the ladies, they are wearing the cloth very similar to what Assamese Hindu ladies wear, which is called the mekhla chador. And you can see the Goria community ladies also wearing the same kind of clothing, the traditional clothing, which shows you how similar the cultures are with the Assamese Hindus and how different the cultures are from a Muslim coming from the East Bengal origin or East Pakistan origin. Among the Muslim community, there are 5 distinct communities which are known as the Assamese Muslim community. Now we have already approved the census. They are now in the process of identifying villages where Assamese Muslims are living, and also they are earmarking the wards and other places where Assamese Muslims are living in the town area. 2024 will complete the complete census. नमस्कार, हमसे जुड़ने के लिए स्वागत है आपका. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पे सादर मेखला सादर को यहाँ पे वो बना रही हैं. तो यहाँ के जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है? वो मेखला चादर पहनते हैं. लेकिन मेखला चादर तो जो असम के हिंदू महिलाएं वो पहनते हैं. वो लोग का कल्चर हमारा कल्चर सेम ही है, लेकिन हमारा मियाँ से नहीं मिलता है. हाँ, जो मियाँ कम्युनिटी है वो लोग के साथ नहीं मिलता है, लेकिन जो असम का हिंदू है ना वो लोग के साथ हमारा मिलता है. सो इसी कारण क्या मुख्यमंत्री अलग से एक सेंसस बना रहे हैं या एक सर्वे बना रहे हैं ताकि आप लोगों का जो जनसंख्या है उसको पता चल सके? ये बात सही है. हमारा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हम लोग के लिए इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है. हम लोग कैसे चलता हूँ, कैसे दिन गुजर रहा हूँ, ऐसे सब आप इससे सहमत है? बनाना चाहिए सर्वे? जरूर हम लोग से सहमत है और हम लोग उम्मीद करता हूँ ये सेंसस से हमारा बहुत डेवलप होगा. यहाँ पे असम में एक परसेप्शन है, एक माइंडसेट है कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश से आए हैं. इस बात को आप कैसे लेते हैं? ना वो कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, लेकिन आज 10-15 साल से ये कॉन्सेप्ट आ गया. न तो अभी असम का जो हिंदू आदमी है वो लोग समझ गया है हम लोग इंडिजियस मुस्लिम हैं
और मियाँ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कम्युनिटी अलग है। Bihu is the most important festival of Assam, and within a week or 10 days we have the Magh Bihu celebrations in Assam. And as you can see here, the ladies are already started preparing for Bihu, because this Bihu is all about food, and they are now using this traditional method of grinding the rice, through which they are going to later make goodies for Bihu, which is called pitha in Assam. And as such they are doing it. This is a very traditional way of living in Assam, when ladies prepare these grinding the rice ahead of the Bihu. And you can see these are ladies from the Goria community. They follow Islam, but they are doing the same because of Bihu. We are joined by the chairman of Goria Development Council, Hafizul Amin. नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है आपको। आज हमने गांव में घूमा, हमने देखा, कल्चर के बारे में देखा, और जो यहाँ के जो गोरिया संप्रदाय या हमारे जो इंडिजिनस संप्रदाय का जो एक खुद का वे ऑफ लिविंग है, वो थोड़ा डिफरेंट है जी। ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? जी देखिए, जो हम लोग तो पहले से यहाँ से रह रहे थे। अहोम कूच रिजिम के टाइम में हम लोग एक ही साथ रहा करते थे, और हम लोग के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं थे। यहाँ के इंडिजिनस लोग हम लोगों में सिर्फ रिलीजन का डिफरेंस था, और हम लोग को गोरिया मोरिया देसी नाम करके हम लोग को जाना जाता था। तो वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिजिनस असमीज सोसाइटी। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद या उससे पहले ये जो बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है, कुछ दिन पहले पूर्व पाकिस्तान था, कुछ दिन पहले पूर्व बंग था। वहाँ से लाखों से जो लोग जो यहाँ जो इमिग्रेशन किया, उनकी संख्या उनकी इतना बढ़ गई, तो उसके लिए हम लोग जो है आइडेंटिटी क्राइसिस में हम पड़ गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि कहा जाता है कि इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे के हिंदुओं को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि आपके कम्युनिटीज़ को भी फेस करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो इमिग्रेशन हुआ था बहुत लीगली यानी इलीगली, उसका सबसे बड़ा शिकार आपके कम्युनिटीज़ बने? सबसे बड़े वी आर मोस्टली अफेक्टेड only because of the immigrant Muslims. They have completely destroyed our identity. कोई भी इंडिजिनस हिंदू के साथ हमारा अलग नहीं है, लेकिन उन लोग के साथ अलग है। विपक्ष लेकिन बोल रहे हैं कि ये एक विभाजन का राजनीति जो असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये विभाजन कैसी बात है भाई? कभी हम लोग विभाजित थे नहीं। गांव के लोगों ने कहा कि पूर्व बंगाल के या मियाँ मुसलमान को जमीन नहीं दिया जा रहा है। एक्सट्रीम नहीं लग रहा है आपको ये? जी नहीं, ये कैसे देंगे हम? आप देखिए, हम तो सब कुछ खो दिया। अब देखिए, माइनॉरिटीज के जितने सुविधाएं है, ये लोग मुसलमान के नाम पर पूरा माइनॉरिटीज की सुविधा ले जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ अगर हम कोई भी मियाँ मुसलमान को यहाँ जगह देंगे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? तो ये लोग क्या होगा, मतलब 4, 5, 10, 15 पैदा कर देंगे, है कि नहीं? और दूसरी बात है, उनका कल्चर से हम लोग का कल्चर मिलता नहीं है। जो अपना कल्चर से जो कंप्लीट अलग है, जो अलग कल्चर के साथ हम लोग कैसे रह सकते हैं? और अभी हाल ही में सरकार ने जो स्टेप लिए है, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो स्टेप लिए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने का, ये बहुत बड़ी स्टेप है, और बहुत हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे लिए ये मसीहा बन के आए हैं। हमारा हिसाब से असम में जो भी मुसलमान हैं, ऑल आर असमीज मुस्लिम्स। रही बात इंडिजिनियस मुस्लिम, असम में जो भी मुसलमान आज तक है वो असमीज मुसलमान हैं। अगर सेंसस करना है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना है, तो सबका करेगा। अगर बीजेपी का इंटेंशन डिवाइड एंड रूल है, तो ये गलत है। इसका हम अपोज करते हैं। दूसरी बात ये है, बीजेपी ने असम में जो गरिया मरिया देसी जोहा ये जो मुसलमान हैं, इनको बीजेपी ने एक सर्टिफिकेट इशू करके इंडिजिनियस घोषित किया है। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या असम में जिनका 1000 सालों का हिस्ट्री है, उनको बीजेपी इंडिजिनियस घोषित करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है? लास्ट 7-8 ईयर्स असम में बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, तो जो 5 कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए लास्ट 5-7 साल में ये लोग क्या किया है, ये सब बात भी डिस्कशन होना चाहिए। अभी आप लोगों को सबको मालूम है 2024 का जो इलेक्शन है वो ड्यू है। बिफोर इलेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट एंड जो हिमंत बिस्वा शर्मा असम का जो सीएम है, ये लोग के पास असम का जनता के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है,
जो क्या लेकर जाएगा, ये लोग का जो एजेंडा था, कोई भी एजेंडा ये लोग फुलफिल कर नहीं पाया। तो अभी उसके लिए दे आर डूइंग डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला। ये अभी जो लोकसभा आ रहा है, ये लोकसभा में कोई भी आपका लोकसभा से कोई भी सीट से ये लोग को देगा क्या? ऐसा तो कुछ देगा नहीं। ये खाली आपका टोपी पहनने वाला काम है हिमंत बिश्व शर्मा का। और ये जो पॉलिसी है, सीएम का जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी विल ब्रिंग नेगेटिव इंपैक्ट टू असम। दिस पॉलिसी विल डिस्ट्रॉय असम। आपका जो डिवाइड करने का जो पॉलिसी है, जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी से असम का कुछ भला होने वाला है नहीं। ये असम का खराब होगा। असम का जो चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है, चाहे ये जनगोष्ठी लेकर जो भाग कर रहा है, चाहे का को लेकर जो ये लोग का जो भूमिका है, ये सब असम को एक दिन डुबाएगा, असम को एक दिन डिस्ट्रॉय करेगा। तुम लोग कपड़ा कब से बना रहे हैं? हमारे बनाते हैं। हाँ? कितना दिन से बना रहे हैं? बहुत दिन से। ये अच्छा लगता है? लगता है। खुद बना के बिक्री करता है ना, घर में पहनता है? घर में बनता है, बिक्री होता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी नाम पारवीन है। तुम्हारा गांव का नाम क्या है? कुटुरी। आप लोग यहाँ पे कितना दिन से? बहुत दिन से। अगर यहाँ में बहुत दिन रहा है ना, अगर किसी ने अगर बोल दिया है बांग्लादेश तुम हट जाओ, तो वो क्या लगेगा? क्या लगेगा? खराब लगता है। तो क्या बोलेगा उनको? तुम क्या जवाब देगा? उनका हमारी बांग्लादेश नहीं है, हमारी आसाम है। You will see if you go to any Hindu household where before the Bihu, the ladies are doing the stitching and the weaving of handloom, and that is what we are going to show, and that is what the Assam government is trying to do. It is trying to separate the community so that they can do further policy measures to target that community in their development. With video journalist Hirok Deka, this is Nibir Deka reporting for the New Indian. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.